We'll start with problems today, numericals on how much we have so far. तो अब आई एम वेरी श्योर आपको तीनों टाइप के स्ट्रेस, तीनों टाइप के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अच्छे से पता है और यू नो द फॉर्मूला आल्सो. So let us start with example 6.1. A brass wire of length 4.5 meter and cross-sectional area of 3 into 10 power minus 5 meter square and a copper wire of length 5 meter and cross-sectional area 4 into 10 power minus 5 meter square are stretched by the same load. मतलब दोनों पे force same है. The same elongation is produced. मतलब दोनों का change in length same है. In both the wires, find the ratio of Young's modulus of brass and copper. Okay, so in the given data, as you know, हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हमारा एक पैटर्न होता है. सबसे पहले we write down given data and we draw diagram if necessary. यहाँ पे डायग्राम की जरूरत नहीं है. So in the given data, what you have a brass wire of length 4.5 meter. मतलब length of brass wire is 4.5 and area of cross section of brass wire is 3 into 10 power minus 5 meter square. And then you have a copper wire जिसका length है 5 meter and the area of cross section of copper wire is 4 into 10 power minus 5, 4 into 10 power minus 5 meter square. This is what you have. Good. Ab you are supposed to find out Young's modulus of brass to copper. मतलब you are supposed to find what is YB upon YC or formula here you will not write in terms of mg क्योंकि आप Young's stress upon tensile strain, tensile stress is force upon area, so force upon area upon change in length upon original length. So this is what you know, right? अब एक काम करो, जो कांस्टेंट्स है उसको पहले से ही इक्वेशन से हटा दो. ऑफ कोर्स आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. आप ये इक्वेशन लोगे, फॉर्मूला लोगे, देन यू कैन y brass equal to तो force on brass, area of brass, तो ऐसा भी कर सकते हो. Otherwise what you can do is you should write this as y equal to f और a गया नीचे, डेल्टा l और ये l आ गया में. तो अब what you know is क्या सेम था, क्या सेम बोला है, सेम लोड एंड सेम इलोंगेशन. सेम लोड मतलब फोर्स एंड इलोंगेशन मतलब कांस्टेंट है, राइट? So therefore y is directly proportional to length upon area. ऐसा अगर करोगे तो थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाएंगे. So you can just do this and solution is very simple. So what you can do here is brass upon y copper equal to y is proportional to length of brass और यहाँ पे length of copper and inversely proportional to area. So area of brass wire and area of copper wire. Good. अब यहाँ पे आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करने होंगे values of this. So y brass upon y copper, length of brass 4.5 or length of copper wire was 5. Area of brass wire was 3 into 10 power minus 5 and this was 4 into 10 power minus 5. 10 power minus 5 हो गया cancel. This 1 za 0.9 za, 1 za 0.3 za, 0.3 into 4 is 1.2. Therefore the ratio of Young's modulus of brass wire to that of copper wire is 1.2. Done. Question. Example 6.2. A wire of length 20 meter and area of cross section 1.25 into 10 power minus 4 meter square is subjected to a load of 2.5 kilogram. Actually उन्हें लिखना चाहिए था kilogram kgwt.
So they should write kgwt, which is not printed here. तो समझ लेना कि वहां पे kgwt है. So it is kgwt. And what is kgwt? It is practical unit of weight. For example, when you measure your own weight, जब आप बोलते हो my weight is 50, 55, 60, what you are saying is kgwt, and 1 kilogram weight is 9.8 Newton. अगर आपका 50 है तो 50 को 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा to get it in Newton. The elongation produced in the wire is 10 power minus 4 meter. Calculate Young's modulus. So very straightforward, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, extremely straightforward. Given to you is आपके पास कुछ पैरामीटर दिए हैं, length of the wire 20 meter, then area of cross section of the wire is 1.25. Area of cross section is 1.25 into 10 power minus 4 meter square. Then it is subjected to a load of 2.5. Load मतलब force 2.5 kgwt. kgwt is not SI unit, तो इसको SI unit में convert करने के लिए 1 kgwt का conversion factor 9.8 already दे के रखा है, तो ये आ गया न्यूटन में. This is load. And then elongation produced मतलब delta L. Delta L कितना दिया है? 10 power minus 4 meter. This is what you have. Then अब to find out Young's modulus. And Young's modulus का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है. अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में you have used this formula. So y equal to FL upon A delta L. हाँ, FL upon A delta L. So straight away. So what you will do here is just substitute values. So value substitute कर दो, and you have your answer. So y equal to f is 2.5 into 9.8 into L. What is L? L 20. L is 20 upon A. A is 1.25 into 10 power minus 4 into 10 power minus 4, or delta L is also 10 power minus 4, right? अब मैं पहले आपको बताता हूँ how to do it approximately, फिर आंसर उसके नियर अबाउट आएगा. अप्रोक्सीमेट कैसे करोगे? नो 1.25 का डबल कितना? 2.5. इसको अगर मैं 9.8 की जगह पे 10 लिख देता, 1 जा एंड 8 जा, 1.2 into 8 is 10, है ना? 1.25 का डबल 2.5, उसका डबल 5, उसका डबल 10. So 1.25 into 8 is 10. Good. So अब you see 2.5 और ये 0, 20 का 0 निकाल लो, इसको दे दो. 25 into 8 200. 25 into 8 is 200. या तो एक काम करो, ठीक है, 2.5 into 20 कर लो, 50. 58 जा 400, 400, और ये 10 पर माइनस 8 ऊपर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, तो 4 into 10 पावर 10. करेक्ट. ये है अप्रोक्सीमेट आंसर. 4 into 10 पावर 10. अगर आप एग्जैक्ट करोगे तो आंसर आता है 3.92. तो दैट इज द ओनली डिफरेंस. अगर आप अप्रोक्सीमेटली कर रहे हो तो 4 into 10 पावर 10. अगर आप एग्जैक्टली सॉल्व करोगे इसको तो 3.92. What you will get is 3.92 into 10 power 10. Unit Young's modulus unit Newton per meter square. So if you want to do exact calculation, it's again simple task. कैसे? You see 1 and 2. अब इससे भी easy, और ये 0 हटा दो और ये 9.8 का पॉइंट निकाल दो, तो व्हाट यू हैव इज 98. अब कैलकुलेशंस करते कैसे पहले वो समझ लो. ये 98 है. 98 कब हुआ? जब आपने पॉइंट हटा दिया. ये 0 और ये पॉइंट गए, 2 into 2 4, मतलब ऊपर क्या आएगा? 98 into
4 और 10 पावर प्लस 8, करेक्ट। 90 इंटू 4, 100 इंटू 4 कर लो, कितना आएगा 400। करना कितना था 98, मतलब हमने 4 बार एक्स्ट्रा गिन लिया, तो 400 में से 8 माइनस करो, 392। दिस इज हाउ यू डू इट, सिंपल। तो कोई कैलकुलेटर कोई बुक की जरूरत नहीं है आपको, यू जस्ट हैव टू डू सिंपल सिंपल मल्टीप्लीकेशन। तो 392 इंटू 10 पावर 8, फिर पॉइंट लगा दो 3 के बाद, तो 10 के पावर 2 से बढ़ जाएगा, तो 3.92 इंटू 10 पावर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6.3। A metal cube of side 1 meter is subjected to a force. The force acts normally on the whole surface of the cube and its volume changes by 1.5 into 10 power minus 5 meter cube. The bulk modulus of metal is 6.6 into 10 power 10 Newton per meter square. Calculate the change in pressure. तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। You have a cube, आपको पता है क्यूब क्या होता है, you know? Cube has 6 faces and each face is a square. So 3-dimensional object है, this is a 3-dimensional object and you already know how a cube looks like. So this is how it looks like. ऐसा cube है आपके पास। Then why it is important? वैसे डायग्राम you don't need, सिर्फ normally का मतलब क्या उन्होंने बोला है, the force acts normally on the whole surface of the cube. तो इसका मतलब क्या, what they are trying to tell you is, they are trying to tell you that इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इस फेस से नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर है, यहां से भी परपेंडिकुलर फोर्स है, यहां से भी परपेंडिकुलर फोर्स है, नीचे से भी परपेंडिकुलर फोर्स है, फ्रंट से भी परपेंडिकुलर फोर्स है और बैक से भी परपेंडिकुलर फोर्स है। तो यू हैव force which is acting something like this, right? Good. You don't have to draw this. सिर्फ आपको समझाने के लिए कि क्या होता है यहाँ पे, what is happening. Then what is given to you? What is given to you is length of each side. ये सारे के सारे है L L L, each edge is L, तो 1 मीटर। अगर आपके पास लेंथ 1 मीटर है साइड का, तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लेंथ क्यूब L इंटू L, तो ये आ गया 1 मीटर क्यूब, सिंपल। एंड दे हैव टोल्ड यू द वॉल्यूम चेंजेस बाय, वॉल्यूम चेंजेस बाय मतलब डिक्रीज इन वॉल्यूम, या तो डीवी बोलो या तो फिर डेल्टा वी, आपके ऊपर है। डीवी इज 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 5 मीटर क्यूब। Bulk modulus K is 6.6 into 10 Newton per meter square. Okay, then what you're supposed to find is change in pressure. This diagram you will not need, hence I am removing it. सिर्फ आपको बताने के लिए था। Good. Then you are supposed to find out change in pressure. Find what is dP. And formula, अगर आपने यहाँ पे बल्क मॉडुलस के वर्ड देखा है तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, dP अपॉन dV बाय V, तो V आ जाएगा ऊपर, और आपको फाइंड क्या करना है, dP, चेंज इन प्रेशर। तो dP इक्वल टू K dV बाय V, तो K dV बाय, सिंपल, वेरी सिंपल, जस्ट पुट वैल्यूज हियर। dP इक्वल टू K, K कितना 6.6 इंटू 10 पावर 10, dV कितना 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 5, 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 5, और V कितना, तो डिवाइड बाय कितना आएगा 1। गुड, क्लियर यहां तक? मल्टीप्लाई नाउ, व्हाट यू विल सी इज 10 पावर 10 और ये 5, 10 पावर 5, गुड। 66 इंटू 15, एक काम करो 6.6 का पॉइंट निकाल लो और 1.5 का भी निकाल लो, तो 10 पावर 3 रह जाएगा, और 66 इंटू 15 990,
66 into 10, 660, 66 into 5, 330, 660 plus 330, 990. तो 990 into 10 power 3, राइट। ये आ गया चेंज इन प्रेशर। अब इतना लिखो, या फिर आप 99 into 10 power 4 लिखो, या फिर आप 9.9 into 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। दिस इज व्हाट यू शुड गेट, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate modulus of rigidity. Okay, whenever I read rigidity modulus, so you should always diagram with you. So just to tell you, ये आपको याद होना चाहिए। I will just copy this and then we will solve the question. तो यहाँ पे था calculate modulus of rigidity. So you have this diagram now. Good. Calculate the modulus of rigidity of a metal if a metal cube of side को मैं नाम दे देता हूँ L, right? तीनों साइड, क्योंकि I mean of course it has 3 edges, so L is 40 centimeter, side length L is 40 centimeter. सेंटीमीटर मतलब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई होगा। is subjected to a shearing force. Shearing force मतलब tangential force. तो shearing force is a force which basically changes the shape, और वो force होता है tangential. तो ये जो shearing force है, this is how much न्यूटन, मतलब 2 into 3 न्यूटन। ये आदत डाल लो आप, 2000 दिखा ना, 2 into 10 power 3, क्योंकि बाद में 10 के पावर को हमको अलग से सॉल्व करना होता है। Then the upper surface is displaced through 0.5. Upper surface is displaced through, आपको याद है ये जो डिस्प्लेसमेंट था h डैश या फिर e डैश, f डैश, g डैश, इसको बोला है 0.5। और मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में, इसको डेल्टा एल बोल देना। हाँ, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको डेल्टा एल बोल दो। दैट इज हाउ मच, 0.5 सेंटीमीटर, मतलब 5 into 10 power -3 मीटर। 0.5 - 2 हटा दिया तो 5 into 10 power -3, right? Calculate the modulus of rigidity of the metal. So you are supposed to find out eta. Modulus of rigidity मतलब elasticity of shape. तो ये फाइंड करने के लिए बोला है, एंड आई होप आपको फॉर्मूला याद होगा। नहीं याद होगा तो डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल। eta इक्वल टू shearing stress. Shearing stress मतलब tangential force upon area. Up shearing strain is relative displacement of any layer. What is relative displacement? h dash upon its fixed distance from fixed layer, which is ha. तो ये आ जाएगा आपके पास ft by a। h dash को हमने क्या बोला है? डेल्टा एल, तो ये आ जाएगा डेल्टा एल। और एच ए को हमने क्या बोला है? एल, इजंट इट? एच ए को नाम दे दिया एल, एच एच को नाम दे दिया डेल्टा एल। तो मैंने आपको बताया था कि शेयरिंग स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला सेम होता है। अगर उसका फॉर्मूला सेम होता है और शेयरिंग स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन का भी फॉर्मूला सेम होता है, क्या आता है? डेल्टा एल बाय एल। तो ईटा मतलब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ शेप, और यंग्स मॉड्यूलस वाई, याद है क्या? उसका फॉर्मूला क्या आएगा? सेम, सिमिलर था क्या? यही था, देखो यही था, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल है। यहाँ पे भी एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। वेरी गुड। दो what you will do here is, therefore you will just put values, eta equal to f कितना है? 2 into 10 power 3 into l कितना है? 10 power -2, मतलब 4 into 10 power -1, करेक्ट? अपॉन ए कितना है? ए कितना है? कौन सा है? जिस सरफेस पे फोर्स लग रहा है।
अब ये साइड L है, ये साइड L है, एरिया क्या होता है? L इंटू L, एरिया इज L इंटू L. व्हाट इज L इंटू L? L स्क्वायर. एक काम करो, वेरी गुड. Look. Don't be hurry to do calculation. पहले तो समझ लो फोर्स अपॉन एरिया. कौन सा एरिया? जिस सरफेस पे फोर्स लग रहा है उसका एरिया. और क्या था? क्यूब था. क्यूब का एरिया क्या आता है? L स्क्वायर. क्यूब के किसी भी सरफेस का फेस का एरिया कितना होता है? L स्क्वायर. तो वेट, डोंट बी इन हरी टू डू एनी कैलकुलेशन. एक स्टेप हम लोग बढ़ा लेंगे, लेकिन इससे कैलकुलेशंस कम हो जाएंगे. कैसे? यू हैव फोर्स Ft, you have L, you have area, but area is O, so I can cancel it out. Good. that is why don't be in hurry. Delta L. अब आप यहाँ पे easily calculation कर सकते हो. 2 into 10 power 3. What is L? अभी बताया आपने. 4 into 10 power minus 1. What is delta L? 5 into 10 power minus 3. 5 into 10 power minus 3. Right? अब 1 जा and 2 जा and 5 into 2 is 10. Very good. 10 power 3. नीचे ये 10 और ये 10 power minus 1 कैंसल. तो नीचे क्या बचा? 10 power minus 3. ऊपर जाएगा तो क्या होगा? plus 3. 3 plus 3 6. 10 power 6 Newton per meter square. This is what you will get. Next question. A wire gets stretched by 4 mm, मतलब delta L, due to a certain load. If the same load, अब देखो, sometimes आपको given data में पहले identify भी करना पड़ेगा कि क्या क्या constant है. If the same load, मतलब force is constant, या फिर F1 equal to F2 लिख सकते हो, या F equal to constant लिख सकते हो. If the same load is applied to a wire of same material same मतलब Young's modulus भी same. और ये जो मैं बता रहा हूँ मेथड, ये मेथड आपको जेई नीट सीटी में काम में आएगा. ये तो मैं बोल सकता था F1 equal to F2, Y1 equal to Y2, but then 3-4 steps will increase. तो F constant and Y constant. आगे बोला है if the same load is applied to a wire of same material with half the length, मतलब जो सेकेंड वायर है उसका लेंथ पहले के कंपैरिजन में हाफ है, एंड डबल द डायामीटर, मतलब इसमें जो डायामीटर है वो डबल है. तो डायामीटर D2 is 2 times of D1. बट यू नो डायामीटर डबल होना मतलब रेडियस का भी डबल होना. तो रेडियस इज ऑल्सो डबल. अब रेडियस डबल होना मतलब एरिया 4 टाइम्स होता है. तो देखते हैं, वी विल सॉल्व दैट. इतना तो पता है अब. ओके, आगे आपको बोला है व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स लेंथ. ओके, तो पहले का चेंज इन लेंथ कितना बताया है? 4 mm. तो डेल्टा L1 इज 4 mm. और आपको पूछा क्या है? व्हाट इज द चेंज इन द लेंथ ऑफ सेकेंड वायर? व्हाट इज डेल्टा L? दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. क्लियर यहां तक? तो फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट आर कांस्टेंट पैरामीटर्स, फिर जो इंफॉर्मेशन है वो देखो. Then what is to be found out and formula. As I told you, वायर है, लेंथ चेंज हो रहा है, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला यूज होगा FL अपॉन A डेल्टा L. गुड. जो कॉन्स्टेंट्स है पहले उसको आइडेंटिफाई कर लिया हमने, F और Y. एक काम करेंगे, इसको A डेल्टा L को शिफ्ट कर देंगे. तो वाई ए डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल. अब क्या क्या कांस्टेंट था? राइट, आपको फाइंड क्या करना है? डेल्टा एल. तो डेल्टा एल फाइंड करना है ना, तो सीधा डेल्टा एल का फॉर्मूला बना लेते. लेट्स मेक अ फॉर्मूला फॉर डेल्टा एल. सिर्फ डेल्टा एल को शिफ्ट कर दो. डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई. करेक्ट. इसमें एफ और वाई कांस्टेंट. Therefore, delta L is directly proportional to L and inversely proportional to A. Right? क्योंकि F और Y क्या है? Constants है इसके लिए. अब then what you can do is
इसके बाद आप क्या कर सकते हो, बट एरिया ऑफ वायर इज पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट। देयरफॉर डेल्टा एल, जो एल अपॉन ए था, डेल्टा एल वाज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, नाउ इट विल बी प्रोपोर्शनल टू एल बाय आर स्क्वायर। ये शॉर्टकट मेथड है, आई एम टेलिंग यू शॉर्टकट मेथड। बाकी the file that I will upload will have another method also. Okay, so you need अब easy. So what you will do here is, क्या फाइंड करना था, डेल्टा L2। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा L2 बाय डेल्टा L1। डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल L, डेल्टा L2, और यहाँ पे लिखोगे L2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ लिखोगे R1 स्क्वायर। डेल्टा L1 तो यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर में L1 और ऊपर आएगा R2 स्क्वायर, पक्का R1। अरे समझा गया, पक्का, ठीक है, गुड। जिनको नहीं समझा मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। डेल्टा L2 बाय R2 स्क्वायर, डेल्टा L1 बाय R1 स्क्वायर। तो L2 बाय L1, R1 ऊपर जाएगा, R2 डिनोमिनेटर में आएगा, और दोनों का क्या है, स्क्वायर है। L2 बाय L1, व्हाट इज L2 बाय L1? L2 by L1 is half, 1 by 2, 1 by 2. What is R1 by R2? R1 by R2, 1 by 2, ये 1 by 2 है, 1 by 2 है, और इसका क्या है, स्क्वायर। 1 by 2 का स्क्वायर 4, 4 into 2 8, तो 1 by 8, तो डेल्टा L2 is डेल्टा L1 by 8। But what is डेल्टा L1? 4 mm, 4 by 8, और mm को mm रहने दो, 1 जा 2 जा। What is 1 by 2? 0.5 mm, 0.5 mm आ गया आंसर। क्वेश्चन, a solid metal sphere of volume 0.31 meter cube is dropped in an ocean where water pressure is 2 into 10 power 7 Newton per meter square. Calculate change in volume of the sphere if the bulk modulus is 6.1 into 10 power 10 Newton per meter square. Right. अब according to the question, मैंने आपको बताया था, I told you कि आपको ऐसा स्पेसिफाई किया है क्या कि कहाँ से ड्रॉप किया, एयर से ड्रॉप किया, नहीं, मतलब इनिशियल प्रेशर विल बी 0। तो सीधा सीधा स्ट्रेट अवे व्हाट इज गिवन टू अस इज, सबसे पहले मेटल स्फीयर ऑफ वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम V 0.31 मीटर क्यूब, ड्रॉप्ड इन एन ओशन वेयर वाटर प्रेशर इज, मतलब चेंज इन प्रेशर डायरेक्टली ले लोगे 2 into 10 power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा बोला होता इनिशियली इन एयर, तो उस केस में डीपी वो होता फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर आप लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो होता है 1.013 into 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न, कहीं पे भी नहीं ऐसा बोला उन्होंने कि पहले कहाँ था, पहले पता नहीं कहाँ था, तो इनिशियल प्रेशर इज 0, तो चेंज इन प्रेशर इज डायरेक्टली फाइनल प्रेशर। व्हाट इज फाइनल प्रेशर? 2 into 10 power 7। कैलकुलेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इफ बल्क मॉड्यूलस, मतलब के कितना दिया है, के 6.1 into 10 power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट change in volume. Find what is change in volume. V and formula of course you know. Bulk modulus सुना, मतलब this is V dP by dV. तो आपको क्या चाहिए, dV, तो V dP by K. So therefore what you will have is dV equal to V dP by K, और
आपके पास v की वैल्यू कितनी है 0.31, dp कितना है 2 इंटू 10⁻7 अपॉन k कितना है 6.1 इंटू 10⁻10। वेरी गुड। रफली अप्रोक्सीमेटली 0.31 का एक पॉइंट निकाल लो, उसको 3.1 कर दो। तो 0.31 को 3.1 करोगे तो 10⁻−1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऑलरेडी वहां पे कितना है 7। तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा 10⁻6, और ये क्या है 2 है, और नीचे क्या आ गया 6.1। नीचे अगर ऑफकोर्स 10⁻10 भी है ऑफकोर्स, और अगर नीचे 6.2 होता तो हमारा काम आसान होता। काम सिंपल। कैसे गया ये, ऐसे गया 1 जा एंड 2 जा, 2 और 2 कैंसल, ये ऊपर जाएगा 10⁻6 और 10⁻10, तो रफली 10⁻4 मीटर क्यूब। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। अगर अच्छा इन्होंने आंसर भी वही दिया है। ओके गुड, 10⁻4। नेक्स्ट क्वेश्चन। A wire of mild steel of initial length, as हो गया वहां पे, it should be of initial length 1.5 meter and diameter 0.6 mm gets extended by 6.3 mm when a certain force is applied to it. If Young's modulus of mild steel is 2.1 into 10⁻11, calculate the force applied. Simple question है ये भी। तो व्हाट यू हैव इज गिवन, क्या है आपको, इनिशियल लेंथ मतलब L 1.5 मीटर, डायामीटर इज 0.6 mm, मतलब रेडियस बिकम्स हाफ ऑफ डायामीटर 0.3 mm। अब देखो रेडियस या डायमीटर क्यों दिया होता है, क्योंकि एरिया फाइंड करना पड़ेगा ना। क्योंकि यंग मॉडल्स में क्या था F/A, तो उधर के उधर एरिया फाइंड कर लो आप। R इक्वल टू 0.3 मतलब 3 इंटू 10⁻4 मीटर, mm का 10⁻³ हो गया, और 0.3 का पॉइंट हटा लिया तो एक 10⁻1 और आ गया, तो 3 इंटू 10⁻4। The moment you have radius, just calculate this because you will need this pi r square, area to pi r square। तो एरिया A इक्वल टू पाई और r का स्क्वायर, r इज 3⁻4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, पाई तो पाई है, और 10⁻8 मीटर स्क्वायर, तो एरिया मिल गया। आगे क्या दिया है आपको, आपको बताया गेट एक्सटेंडेड बाय, एक्सटेंशन मतलब डेल्टा एल कितना 6.3 mm मतलब 10⁻³ मीटर, और क्या बताया यंग्स मॉड्यूलस वाई, वो कितना बताया है 2.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल यू हैव, and what you're supposed to find is force applied. What is the value of deforming force, applied force, external force? Good. तो फॉर्मूला you know, फॉर्मूला आपको पता ही है। What is the formula of Young's modulus? Y equal to FL by A delta L. You are supposed to find out F. So therefore F equal to Y A delta L by L. Good. So just substitute values here. So you will get F equal to Y. Y की वैल्यू कितनी 2.1 into 10⁻11 in A कितना 9 pi into 10⁻8 into in डेल्टा एल कितना 6.3 into 10⁻³ upon initial length. What is initial length? 1.5। हमारा काम बहुत आसान कर रहा है, वेरी गुड। 1.5 1 जा, you know 1.5 2 जा 3 4 जा 6 6 जा 9, करेक्ट है ना, पक्का, श्योर, ओके गुड,
वापस एक बार वेरीफाई कर लो। यस, गुड। तो f इक्वल टू, अब देखो ऐसा है, पहले 10 के पावर, ये 10 पावर 11 -8 -3 गया, गॉन 2.1 इंटू 6 पाई इंटू 6.3। अब 6.3 और ये 6 पाई और ये 2.1। गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 3.14। अब एक काम करो, इसको 3 मान लो। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 जा, सिंपल है, 36 5 जा 180, 180 ना, 36 6 जा, मतलब 180 में 36 और ऐड करोगे, राइट, 216। लेकिन हमने हमने क्या किया, हमने ये 3.14 को क्या काउंट कर लिया, 3, 6.3 को क्या किया, 6। तो हमारा आंसर जो है वो 240 के ऊपर जाएगा। वापस अगर इफ यू वांट आप एग्जैक्ट भी कर सकते हो, एग्जैक्ट कर लो। एग्जैक्ट कैसे करेंगे, ये पॉइंट हटा दो, 6.3 का पॉइंट और इसका पॉइंट 10 पावर -2, 63 इंटू 21 आना चाहिए, 630 प्लस 630 प्लस 63। क्यों? क्योंकि 630 63 10 जा 630 कितना, 1260, उसमें 63 ऐड करो। अरे 630 1260, उसमें 63, 1260 में 63, 1323। वेरी गुड, 132, तो ये 1323 करेक्ट, इंटू 6 पाई इंटू 3.14। अरे इजी है, 6 इंटू 3.14 मतलब 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 0.14, पता नहीं क्या आपको 14 6 कितना होता है, कितना होता है 14 6? अरे 14 6 कितना होता है, 84, 84 ना, 84। तो ये क्या आएगा 0 पॉइंट, तो कितना आएगा 18.84, करेक्ट। अब ये जो 6.3 और 2.1 से 10 के पावर उधार लिए थे वापस दे दो, हो गया। अब यू सी रफली 19 और ये 13, इसको बढ़ाया इसको कम कर दिया। व्हाट इज 19 इंटू 13? 19 इंटू 13 मतलब 19 इंटू 10, 190, 19 इंटू 57। तो मैंने क्या बोला था, 240 के ऊपर जाएगा, राइट। अब एग्जैक्ट आंसर देखोगे तो 250। तो कैलकुलेशन का स्पीड आपको खुद को बढ़ाना पड़ेगा, यू हैव टू कैलकुलेशन। So that's the way you solve it, and that's it.